हाय, सेंट चिल्ड्रन टाइम से मैं हूं कोमल। सेंट चिल्ड्रन टाइम देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। आज हम पहुंच चुके हैं सेंट चिल्ड्रन डिवाइन पब्लिक स्कूल गुरबंता सिंह मार्ग मेन ब्रांच में। यहां पर आज इन्वेस्टर सेरेमनी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें बहुत सारे बच्चों को आज एक अलग टैग मिलेगा। कहते हैं बच्चों की काबिलियत देखते हुए हमेशा उनको टैग मिलता है, और बच्चों को स्पेशली ये टैग देने के लिए उनको सिंसियरिटी काबिलियत सिखाई जाती है। और जब बच्चे में काबिलियत होती है तो उनको हेड बॉय हेड गर्ल बनाया जाता है। इनका काम ये होता है कि सारे स्कूल को मैनेज करना, बच्चों को हर चीज़ सिखानी, क्योंकि अगर आपके बच्चे में ये काबिलियत है तो उनको ये टैग मिलता है। टीचर तो हमेशा नंबर 1 होते हैं, लेकिन उनकी जो नज़र होती है, उनकी आँख होती है, वो पारखू होती है, तो वो बच्चे को पहचानते हैं। तो आज बहुत सारे टैग्स मिलेंगे बच्चों को। चलिए हम भी चलते हैं इस प्रोग्राम में और देखते हैं कौन कौन से बच्चे नंबर 1 रहते हैं। ज्ञान की देवी का रूप है आप, ज्ञान की देवी का रूप है आप, संस्कारों का अद्भुत स्वरूप है आप, संस्कारों का अद्भुत स्वरूप है आप। आपके कदमों से रोशन है ये द्वार, आपके कदमों से रोशन है ये द्वार। स्वागत है आपका सम्मान भारतवास। Because they have shown responsibility, creativity, and a commitment to making a positive difference. Now, I would like to invite our outgoing student to valuable experiences with us. Now, the head boy Navjot Singh from class 12 Commerce. Not as your current head boy, but as someone who has walked a path. Now passes the torch to a new leader. Firstly, let me extend a heartfelt congratulations to our new head boy. Being chosen for this role is not just a recognition of your abilities, but a testament to the trust of your parents and teachers have in you. You are not just leader now, you are role model. So, looking at my journey, I can tell you, being a head boy was one of my most challenging and rewarding experience of my school life. It taught me that leadership is not about giving order, it's about listening, understanding, being there for others when it's hard. There are days when balancing academics, responsibilities, and expectations felt overwhelming, but those were first moments when I learned the most about patience, teamwork. I learned to lead not with a pride, but with a purpose. To new head boy, you will make mistakes, you will face pressure, but will also grow in just way you never ever imagined. Never hesitate to ask and help, and forget that leadership is a service, not a title. Thank you. That was my time. Now, I would like to invite head girl Miss Mandeep Kaur from Arts. Good morning everyone present here. Standing here today brings back so many memories. It feels like just yesterday that I was standing where our new head girl is now.
nervous, excited, and unsure of what lay ahead. And now, as I look back on that journey, I realize how much it's changed me, challenged me, and ultimately shaped. First of all, congratulations to our new head team. You have won this not only because of your achievements, but because of your character. This tour is not just about winning events or delivering speeches. It's about being a voice for the students, a bridge between staff and students, and someone understanding or your difficulties. So when I first started, I thought I had to be perfect. I believed that every answer had to come from me, and that mistakes were not an option. But I learned quickly that leadership is about progress, not perfection. It's about listening more than speaking, supporting more than controlling, and sometimes simply showing up even it's hard. So there were moments I doubted myself, but I always found strength in the people around me, my friends, my teachers, and most importantly, the students, who reminded me why I took on this role in the first place. To our new head girl, trust yourself. You won't have all the answers, and that's okay. Lead with heart, stay grounded, and don't forget to enjoy the small moments because they will become the memories you cherish. Thank you so much. Junior head girl Miss Reena from class 7th A. Deputy junior head boy Mr. Prabjot from class 8B. Sub junior head girl Miss Jaspreet from class 5th. Sub-junior head boy Mr. Tanmay from class 5th. Sub-junior deputy head girl Miss Kavita from class 5th. Sub-junior deputy head boy Kailash Deep from class 4. This year our school made a student compliance squad. Head boy of student compliance squad is Mr. Sudhanshu. Co-members of this team is Natik, Elvis, Lavish and Harshit. Lavish from class 9. Harshit from class 11 Commerce. Now I requested to house Mistress Upper House Miss Himanshu.
समवेयर सब लोग अपना अपना जो पैसा है कहीं ना कहीं इन्वेस्ट जरूर करते हैं. सो इसी तरीके से हमारे पास पैसे से भी ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ है, दैट इज स्टूडेंट्स. और हम उनमें जो है इन्वेस्ट करते हैं व्हाट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिसिप्लिन. ये सब चीज़ें जो है वो हम इन लोगों को इस पूरे टाइम पीरियड में ना सिर्फ सिखाएंगे बल्कि इन लोगों को हम एज लीडर बनना भी सिखाएंगे कि दैट यू हैव टू लीड योर टीम, यू हैव टू लीड योर क्लास, यू हैव टू लीड योर स्कूल. सो ये my dear students, these are not the simple badges. Kindly do not consider it कि हमें सिर्फ जो है वो एक बैज मिल गया है और आज जाकर के हमें जो है वो इंस्टा पे अपनी स्टोरी डाल दी कि yes I have become the head boy, head girl and so many things. So this is not only a badge. This should become the part of your personality. तुम्हारी शरीर का एक हिस्सा बनना चाहिए, तुम्हारी पर्सनालिटी का एक हिस्सा बनना चाहिए, so that हर बच्चा तुम लोगों को फॉलो कर सके. इफ यू आर डूइंग एनीथिंग रॉन्ग एंड यू आर मेकिंग द अदर स्टूडेंट यू शुड नॉट डू दिस थिंग, आपको ये चीज नहीं कर रही है, तो आगे सामने वाला बच्चा आपको ये ना कहे कि भैया और दीदी आप भी तो यही कर रहे हो, तो हम क्या अलग कर रहे हैं. सो यू हैव टू लीड बाय द एग्जाम्पल फर्स्ट. क्योंकि आज भी जो है वो, आई एम सॉरी टू से दिस थिंग कि आई कैन नॉट सी मोस्ट ऑफ द फेसेस ऑफ द पेरेंट्स. 9 o'clock की टाइमिंग थी और मुझे अपना इन्वेस्टिचर सेरेमनी 9:20 पे स्टार्ट करना पड़ा जस्ट बिकॉज वी वर वेटिंग फॉर द पेरेंट्स. और मैं हमेशा हर बार पेरेंट्स को ये बोलती हूँ कि दिस इन्वेस्टिचर सेरेमनी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड इट्स द वंस इन अ लाइफ टाइम चांस, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी. स्कूल में मेरे 1150-1200 बच्चा पढ़ता है, हर बच्चा तो नहीं स्टेज पर चढ़ के हेड बॉय हेड गर्ल बन गया. सो दिस इज द मोमेंट ऑफ प्राउड. You feel proud that our child is different from everyone. और आज जो यहाँ पे जो है वो मेरा बच्चा सीखेगा, डेफिनेटली ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन उसको आने वाले टाइम पर भी जो है वो हेल्प करेंगे. सो जितने भी पेरेंट्स यहाँ पे आए हैं, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जो स्टेज पे ऊपर मेरे साथ खड़े हैं, दे आर गोइंग टू कम टू स्कूल एवरी डे बाय 7:30. जो टाइम चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग. Why? Because they have to look all the other students कि वो कैसे स्कूल में आ रहे हैं, उनका यूनिफॉर्म कैसा है, वो टाइम पे पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे, वो मोबाइल्स लेके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और वो बाइक्स और स्कूटर्स पे या एक्टिवास पे विदाउट जो है वो लाइसेंस तो नहीं आ रहे. सो ये छोटी 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 रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब हम इनको सिखाते हैं तो ये आने वाले टाइम में बड़ी चीज़ें होती हैं. एंड जो नीचे मेरे पास जो हाउस काउंसिल के स्टूडेंट खड़े हैं, दे विल बी कमिंग at 7:30. जब उनके हाउस की ड्यूटी होगी, whenever their house is on duty, they will be going to come by 7:30 in school. Because ये स्कूल का लुक आफ्टर करने वाले. Definitely we are there. Guiding forces इनके साथ खड़े हैं, इनके हाउस मास्टर्स, इनके डेप्यूटी हाउस मिस्ट्रेस, and obviously I am also there. We are going to guide them. हम लोगों ने इनको गाइड करना है, बट काम हमने इनसे ही कराना है. क्यों? क्योंकि अगर ये काम करेंगे तो इनको काम करने की आदत होगी. सो अगर ये बैच लेना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आनी है. जब भी हमें कोई हायर पोजीशन मिलती है, हायर पोजीशन इज ऑलवेज कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों को साथ निभानी ही पड़ेगी. एंड आई होप माय होल स्टूडेंट काउंसिल विल डू देयर बेस्ट एंड डेफिनेटली स्कूल को और अच्छा बनाने के लिए, बच्चों को डिसिप्लिन्ड करने के लिए और बच्चों को स्पेशली टाइम पर लाने के लिए, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ इस चीज़ से. आपने बहुत देखा होगा कि आई एम ऑलवेज स्टैंडिंग आउटसाइड द गेट जस्ट टू फाइट विद द पेरेंट्स दैट यू आर नॉट सेंडिंग योर चिल्ड्रन ऑन टाइम. अगर आप अपने बच्चों को टाइम का वैल्यू नहीं सिखाएंगे तो कल को जब आपका बच्चा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या कहीं पर भी जाने लगा होगा तो वहाँ पर जो प्लेन जाने हैं ना वो ऑन टाइम ही जाने. अगर कहीं आपने शताब्दी भी पकड़नी है ना, शान पंजाब भी पकड़नी है, वो भी ऑन टाइम जानी है. दे आर नॉट गोइंग टू वेट फॉर यू कि हाँ जी अभी वो फलाना बंदा नहीं आया तो हम 5 मिनट वेट कर रहे हैं. अभी तक तो मैंने लिवरेज दे रखी हुई है कि 8 बजे की स्कूल की टाइमिंग है, 8:05 पे हम बंद करेंगे. बट अब थोड़े टाइम में मैंने वो 8 बजे ही बंद करना शुरू कर दूँगा. एंड आफ्टर दैट यू पीपल लड़ते बहुत अच्छा होता है. मैडम फिर क्या हो गया, 2 ही मिनट हुए ऊपर, 5 ही मिनट तो हुए. यू पीपल डोंट अंडरस्टैंड
understand the value of even a single minute, even a single second. कहने को तो हम लोग बोलते थे कि पल भर में कुछ भी हो जाता है, पल भर नहीं होता ना, तो we are not giving importance to that पल भर. आते हैं 5 मिनट लेट, 10 मिनट लेट, 15 मिनट लेट, फिर क्या होगा, स्कूल ही तो जाना है. So it's my humble request with folded hands to all the parents, kindly do send your wards to the school on time, in proper uniform, especially in proper shoes. अलग-अलग तरीके की वैरायटीज के शूज बच्चे पहन के आते हैं. और मैं कल परसों मेरा ओरिएंटेशन था 5th क्लास तक के पेरेंट्स के साथ, and I told them that if your children are not going to come in proper uniform or proper shoes and जो भी आपकी यूनिफॉर्म का पार्ट है, especially shoes से मैं बहुत परेशान हूँ. So they'll be sitting there for the whole day. कुछ तो punishment मिले, कुछ तो उनको एहसास हो कि हमने गलत किया. So I hope I'll be getting cooperation from all the parents also. And once again to all the newly elected student council and the students of house, congratulations to all of you. Now pull up your socks. You have to be the best one. Only then you can guide your fellow children. Saint Soldier Divine Public School. Do solemnly pledge. That I will fulfill my duties. With sincerity. Integrity. And dedication. I promise. To uphold the values. And traditions of my school.
डिवाइन पब्लिक स्कूल गुरबंता सिंह मार्ग मेन ब्रांच के स्टूडेंट मेरे साथ हैं जो पिछले 1 साल से हेड गर्ल का काम संभाले हुए थे। और मनमीत कौर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच मैम। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ क्या क्या और आपको सिखाया गया स्कूल में, और हेड गर्ल होते हुए क्या क्या आपने मैनेज किया वो बताएं। मैनेज तो देखो बहुत कुछ किया है एंड लिटरली प्रिंसिपल मैम का बहुत थैंक यू है, क्योंकि मेरे को लगता नहीं था कि मैं हेड गर्ल बनूंगी। मैं लास्ट 2 ईयर से ही स्कूल में आई हूँ +1 में, और +1 में मेरे को प्रीफेक्ट का टैग मिला था, तो मेरे को लगा नहीं था कि मैं बनूंगी। बट थैंक्स टू प्रिंसिपल मैम एंड टीचर्स जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मुझे दिस अपॉर्चुनिटी दी। सो थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल। Sat Shri Akal, ma'am. क्या नाम है आपका? Ma'am, my name is Navjot. So I was the head boy of the school. So I learned a lot of things from here. Yes, like how to handle the audience. So मैंने बहुत mistakes भी की, but मैंने बहुत कुछ सीखा यहाँ से. So yeah, it was very great experience for me. तो आज अपना टैग किसी और को दिया है, वो कैसा मूवमेंट है? Yeah, it's very emotional क्योंकि we are passing our sachet to new ones, but still it's a reality. We have to accept it. Yeah, we have to accept it. ओके, थैंक यू सो मच। सेंट सोल्जर टाइम्स से कोमल शर्मा की रिपोर्ट। बहुत सारे बच्चों ने आज अपना टैग दूसरे बंदे को दिया है ताकि जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी संभाल सके। हमेशा जब आपके कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो भार भी बढ़ता है, तो इन रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने में आपके टीचर हमेशा आपके साथ सक्षम रहते हैं। मेरे साथ न्यू स्टूडेंट हैं जो आज टैग लेकर के बिल्कुल मेरे साथ खड़े हैं जी, हेड गर्ल एंड हेड बॉय के सेंट सोल्जर डिवाइन पब्लिक स्कूल गुरबंता सिंह मार्ग के स्टूडेंट। तो करते हैं बातचीत। सैलो जी, हेलो मैम। अपना नाम बताएं। मेरा नाम एकमप्रीत है। ओके, एकमप्रीत, जब हम हेड गर्ल बनते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आज मिली है? सो हेड गर्ल की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब मैं हेड गर्ल बन गई हूँ तो मैं स्कूल वालों से ये तो प्रॉमिस करती हूँ कि जो बच्चे स्कूल लेट आ रहे थे वो पूरे टाइम पे आएंगे, और यूनिफॉर्म जो हमारे लिए सिर्फ एक फैब्रिक ही नहीं होता है लेकिन हमारी आइडेंटिटी होती है, वो भी सभी स्टूडेंट्स को बताएंगे कि यूनिफॉर्म कितनी इंपॉर्टेंट है और उसको बिल्कुल सही ढंग से आपने पहनना है। बाकी भी बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो हम एक टीम वर्क के साथ पूरी करेंगे, और हेड बॉय भी हमारे साथ ही है। पूरी मेहनत के साथ स्कूल को और अच्छा बनाएंगे और पॉजिटिव चेंजेस आएंगे स्कूल में। बिल्कुल, थैंक यही होता है जब हेड गर्ल हेड बॉय बनते हैं। जिम्मेदारी के साथ साथ स्टडी का भी ध्यान रखना होता है और अपने साथ दूसरों को भी लेकर के चलना होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे एक बार फिर हेड बॉय से। बहुत बहुत फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच मैम। जिम्मेदारी के साथ खुशी भी है और थोड़ा जो भार है वो भी बढ़ता है। जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल भार बढ़ता जी। है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं बहुत कंधों पे। Yes, I will do my best और I will do my duties wholeheartedly with honesty and respect. Yes ma'am, thank you so much. जिम्मेदारी के साथ हर किसी को हम समझाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नोटी बच्चे होते हैं वो जो नहीं मानते, तो उनको कैसे समझाओगे? जी मैम, ऐसे हमारे स्कूल में बहुत बच्चे हैं। अगर सबसे पहले तो हम उनको समझाएंगे कि ऐसे ऐसे नहीं करना। अगर फिर भी नहीं मानते तो हम रिस्पेक्टेड टीचर्स जो हैं हमारे उनको बताएंगे। अगर फिर भी नहीं मानते तो हमें उनको पेरेंट्स को कॉल करना पड़ेगा, उनको इन्फॉर्म करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जब आपको हेड बॉय एंड हेड गर्ल चुना जाता है तो आपकी काबिलियत देखी जाती है। सबसे पहले ये बात कि आपके अंदर सहनशीलता होनी चाहिए। हमेशा कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो नोटीपना कर लेते हैं, लेकिन आप अपने भार पे मत लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बात कीजिए अपने फैकल्टी मेंबर के साथ, अपने टीचर के साथ। अगर वो सुधर जाते हैं तो दी बेस्ट, नहीं तो फिर कान तो पकड़े जाएंगे। तो अपना अपना जिम्मेदारी के साथ हर अपनी जिम्मेदारी को निभाएं और अपने स्कूल का नाम नंबर 1 रोशन पे लाएं। अपने स्कूल का नाम नंबर 1 करें। A very warm good morning to all the viewers of Saint Soldiers Times. Today we have organized investiture ceremony in our school, that is Saint Soldier Divine Public School main branch. So what is the purpose of investiture ceremony? As we people are investing our money in different categories, in the same manner we are investing the qualities, the values, discipline, responsibility, accountability, all these things in our future leaders. So today we have made our own leaders, in which the head boy, head girl, vice head boy, vice head girl, junior head boy, junior head girl, sub junior head boy, sub junior head girl, sports person, and all the 4 houses have created their own student council so that they can help us in the smooth working of the school. एक्चुअली ये बच्चों को जब हम लीडर्स बनाते हैं तो उसका पर्पस ये होता है कि बच्चे आने वाले टाइम में
ये सीख सके कि हमें समाज में जो है वो किस तरीके से रहना है। बच्चों को जो उनसे जूनियर्स हैं उनको कैसे सिखाना है कि स्कूल में कैसे आना है, डिसिप्लिन क्या है, कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कम्युनिकेट कैसे करना है, एक्टिविटीज़ में कैसे पार्टिसिपेट करना है। बेसिकली इफ आई विल से दैट दिस इन्वेस्टिचर सेरेमनी इज रिस्पॉन्सिबल और इज हेल्पफुल फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज मेन ब्रांच में जो है वो इन्वेस्टिचर सेरेमनी करवाई गई और जो है वो कम से कम हम लोगों ने 68 पोस्ट्स जो है वो बच्चों को दी हैं, जिसमें कि कोई हेड बॉय है, कोई हेड गर्ल है, कोई स्पोर्ट्स इंचार्ज है, कोई वाइज हेड बॉय है, सीनियर हेड बॉय, जूनियर हेड बॉय। दैट मीन्स कि हर विंग में से हर बच्चे को हमने जो है वो एक लीडरशिप की क्वालिटी देखते हुए उसको अपनी अपनी अलग अलग डेजिग्नेशन दी है, सो दैट दे कैन बी हेल्पफुल इन द वर्किंग ऑफ स्कूल। A big congratulations to all the new appointees, to all the new appointees of Student Council as well as the House Council. God bless you all. मेहनत से काम करें और आगे बढ़ें। Thank you. आओ बोला। आज सेंट सोल्जर डिवाइन पब्लिक स्कूल गुरबंता सिंह मार्ग मेन ब्रांच में इन्वेस्टर सेरेमनी सेलिब्रेट की गई, जिसमें बहुत सारे बच्चों को हेड बॉय हेड गर्ल का टैग मिला। कहते हैं बेशक कांधे पे टैग छोटा हो लेकिन हमेशा आपके काम बड़े होते हैं, आपकी काबिलियत देखी जाती है, आपको हर चीज़ सिखाई जाती है। सेंट सोल्जर डिवाइन पब्लिक स्कूल एक ऐसा स्कूल है जो बच्चे को पढ़ना लिखना और काबिलियत भी सिखाता है, उनको चलना, और स्कूल का हेड बॉय एंड स्कूल की हेड गर्ल बनाता है, जिसमें उनको हर चीज़ सिखाई जाती है। जब बच्चा अपने स्कूल से सीखता है तो हमेशा बाहर जा करके नंबर 1 रहता है। सेंट सोल्जर टाइम्स से कोमल शर्मा की रिपोर्ट, कैमरामैन अनुराग के साथ।